Hello students, how are you all? Once again, I welcome you all in this online classes. So, till now, we have discussed many things in chapter number 1, that is partnership. After yesterday's class, I got some doubts from your side. So before starting the new topic that I had told you yesterday to start about the adjustment in closed account. So I'm not going to start the topic just now, but before starting the topic, I'm going to clear your doubts. Some of the doubts I have got from your side. So question number 28b. It is complete question. In this question, all the things are given. Means interest on capital is there, interest on drawing is there, as well as partners commission and reserve fund. Means profit which is to be transferred to reserve fund. That all things are given in question number 28b. So I hope that after getting the solution of this question, you will be able to solve the remaining questions. Means your doubts will be cleared after completion of this question. So again, I am going to show the question. Those who are not having books, they can take the screenshot of the question. Question number 28b. Okay, now I am going to read the question. Alpha and beta are partners with a capital of rupees 1 lakh and rupees 80,000 respectively. The net profit of the firm for the year ended 31st March 2020 amounted to rupees 1,05,625 before considering the following adjustments. Adjustment में क्या दिया? Alpha advanced loan to the firm amounting to rupees 50,000 on 1st October 2019. Interest on capital and interest on drawing is to be charged at 5% per annum. Drawing of alpha is rupees 20,000 and beta is rupees 15,000. Alpha was allowed commission at the rate 3% on conducting sales, rupees 4 lakh. Beta was allowed commission at 5% on distributable profit after charging all commission. It was also decided to keep 10% of divisible profit to reserve fund. ठीक है, ये सारे प्रोविजन करने हैं. इसके बाद कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल what I have told you, whenever you will get the question for preparation of profit and loss appropriation account, you will have to make analysis of the question that if there is any charge against profit in the question or not. If there will be any charge against profit, then first of all profit and loss account will have to be prepared. So till now I have told you two main charge against profit. One is interest on partners loan and another one that I had discussed yesterday about partners rent. ठीक है, partners rent. That means partners salary is appropriation of profit. Partners commission is an appropriation. Partners interest on capital is an appropriation of profit. But if a partner is getting rent from the partnership firm, then it will be the charge against profit for the partnership firm, and it will be written on the debit side of profit and loss account. And in the same case, if any partner has given loan or if any partner has given advanced, if the question use the term advance, that means A advanced to firm rupees 20,000. तो A advanced to firm means A ने B firm को लोन दिया. A provided loan, इसका मतलब advanced का मतलब लोन प्रोवाइड किया. एंड लोन के केस में हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन वुड बी गिवन टू द पार्टनर एंड इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. एनी हाउ इंटरेस्ट विल हैव टू बी पेड. बट इफ देयर इज नो इंटरेस्ट गिवन इन द क्वेश्चन, दैट मीन्स 6% ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन वुड बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स ऑन देयर लोन अमाउंट. तो इस क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 28B, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 28B. In this question, is there any requirement
for preparation of profit and loss account? Yes, because Alpha has given loan to the partnership firm. इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2020. So be clear, if there will be interest on loan as well as partners rent, then profit and loss account will have to be prepared. क्वेश्चन कहेगा नहीं बट फिर भी हमें बनाना पड़ेगा. ठीक है, उसके पहले का सब कुछ सारा कुछ चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट दिया हुआ है, लिखेंगे बाई प्रॉफिट. It is given 1,05,625. 1,05,625. And now interest on, it is an expense, so it will be recorded on the debit side. To interest on Alpha's loan. Alpha's loan. Because Alpha has provided loan. 50,000 लोन डेट दिया हुआ है 50. मैंने बताया था कि अगर लोन का इंटरेस्ट रेट ना दिया हो, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा 6% पर एनम. इस पर एनम का मतलब है 6% पर एनम, मतलब साल भर का इंटरेस्ट 6% होना चाहिए. बट इफ पार्टनर हैज प्रोवाइडेड लोन इन बिटवीन द ईयर, देन मंथ विल बी कंसीडर्ड. ठीक है, मंथ विल बी कंसीडर्ड. और जितने महीने तक फर्म ने लोन का पैसा यूज किया होगा, वो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर दैट ड्यूरेशन ओनली. तो यहाँ पे देखो इसमें दिया गया 1 अक्टूबर को लोन दिया है, तो अगर 1 अक्टूबर 2019 को लोन देता है तो अक्टूबर से फर्म ने यूज किया होगा ईयर एंड तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 6 मंथ तक का कैलकुलेट किया जाएगा. तो 50,000 6% का रेट होगा, तो 6/100 एंड 6 मंथ का यूज करेंगे 6/12. That means 1,500. That means 1,500 would be the interest on loan. So 1,500. Now we will make the total. 1,05,625. Again 1,05,625. Okay, that will be net profit. To net profit. इसको पूरा लिख सकते हैं, to net profit transfer to profit and loss appropriation account. 5, 2, 1. $1,04,125. Now we have to prepare profit and loss appropriation account. Again for the year ended 31st March 2020. Okay, particulars amount. Net profit, first of all it will be transferred by profit and loss account. In bracket net profit 1,04,125. ठीक है, 125. Sometimes in some of the question you will see that partners commission will have to be calculated on net profit. कभी कभी नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा. इसमें क्या है, अल्फा को तो सेल्स के अकॉर्डिंग कमीशन दिया जा रहा है, बीटा को कमीशन तो दिया जा रहा है प्रॉफिट पे, बट वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे. डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब डिविजिबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के बाद
और इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सारी चीजें पार्टनर्स को प्रोवाइड करने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है उस पे कमीशन प्रोवाइड करना है किसको, बीटा को। बट समटाइम्स कमीशन में हैव टू बी कैलकुलेटेड ऑन नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट बोलेगा तो उसमें से अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का कोई आइटम होगा तो माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा इसी प्रॉफिट अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। आगे कुछ क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन में दिया है, इट वाज आल्सो डिसाइडेड टू कीप 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व फंड। डिविजिबल प्रॉफिट का रिजर्व फंड में कितना डालना है, 10%। कभी कभी रिजर्व फंड का अमाउंट भी ट्रांसफर करना होता है तो कभी कभी नेट प्रॉफिट के परसेंटेज पे करना होता है, यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट पे करना है। तो अगर नेट प्रॉफिट पे करना होगा तो अगेन नेट प्रॉफिट ये जो आएगा यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के सारे आइटम माइनस करने के बाद जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट आएंगे उसी का परसेंटेज वो हमारा रिजर्व में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको क्या प्रोवाइड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अल्फा को मैं ये लिखता हूँ, बीटा बी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5% एंड कैपिटल इज 1 लाख, दैट मीन्स 5,000 एंड 80,000 का कैपिटल है तो 4,000 इंटरेस्ट बनेगा, 9,000, ठीक है। इसी तरीके से ड्राइंग्स दिया हुआ है। अब जो सबसे पहले अल्फा का कमीशन दिया 3% ऑन कंडक्टिंग सेल्स, तो 2 इज कमीशन मीन्स अल्फाज कमीशन। मैंने कल बताया था कि कमीशन सेल्स अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है 4 लाख पे 3%, तो सिंपल परसेंटेज निकाल देंगे। 4 लाख पे 3% निकालेंगे तो 12,000। इसी तरीके से अब बीटा को किस पे कमीशन देना है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे तभी हमारा प्रॉफिट आएगा जब सारा कुछ हम रिकॉर्ड कर लेंगे। यानी अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर चार्ज करना है पार्टनर से तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, फिर उसके बाद पूरा अमाउंट ऐड करेंगे, उसमें सारी चीजें माइनस करेंगे, तब डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। तो इसका मतलब हमें पहले कमीशन नहीं कैलकुलेट करना है, पहले क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए बी, दोनों ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है। अल्फा की ड्राइंग है 20,000 एंड बेटा 15,000। अब ये ड्राइंग तो दिया है 20,000 एंड 15,000, इट इज गिवन फॉर द होल ईयर, नो डेट इज मेंशनिंग देयर। तो इन दैट केस इफ देयर विल बी नो डेट ऑफ ड्राइंग, a drawing is not clear, so in that case average interest is to be calculated, that means interest will be calculated only for 6 month, ठीक है, 6 मंथ का। और रेट ऑफ ड्राइंग भी कितना है, दैट इज 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दैट इज 5%। तो 20,000 पे 5% निकालेंगे, दैट मीन्स 1,000 और 1,000 का 6 मंथ निकालेंगे तो 500, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्टनर की जो ड्राइंग है दैट इज 15,000, तो 15,000 ऐसे निकालेंगे, 15,000 5% एंड 6 मंथ के लिए निकालेंगे, 6/12, $375, ठीक है। ये हमारा देगा 5, 7, 875, ठीक। अब इसी तरीके से अब कमीशन कैलकुलेट करेंगे बीटा का, 2 बीटास या 2 बीस कमीशन। बीस कमीशन 5% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन का मतलब ऐसे प्रॉफिट पे कमीशन कैलकुलेट करना है जिसमें से ए का यानी बी को देने से पहले जितना कमीशन देना होगा, यानी ए को कमीशन देना था वो भी कमीशन देना है, इसी तरीके से बी को भी कमीशन देने के बाद वाला जो प्रॉफिट आएगा उस पे परसेंटेज का कैलकुलेशन होगा। दैट मीन्स मैंने कल 2 मेथड बताया था, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अगर कह रहा है कि सारे कमीशन को माइनस करने के बाद आने वाले प्रॉफिट पे कमीशन कैलकुलेट करना है तो मतलब आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट कैलकुलेट, ये डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा कितना जाएगा, 0,
ठीक है, 1,05,000, 1,05,000। इसमें से ये हमारा 12 और 9 हो गया 21,000, ठीक है। यानी 84,000 इज द डिविजिबल प्रॉफिट अभी तक का। इसी 84,000 पे हमको 5% का कैलकुलेशन करना है। तो लिखो 20 कमीशन, ये 20 कमीशन, 84,000 यानी डिविजिबल प्रॉफिट। अब 5 में 105, यहाँ पे क्या करना है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन का 5/105। $4,000, ठीक है, 4,000। इसी तरीके से इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू कीप 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व फंड। अब ये भी 10% डिविजिबल प्रॉफिट को बोल रहा है, तो अब डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये तो बोल रहा था कमीशन पहले देना है, कमीशन के बाद जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा, अभी तक 84,000 बचा था, 84 में से फिर से 4,000 दे दिया, तो माइनस करेंगे 4,000, तो अब ये कितना हो जाएगा 80,000। नाउ फॉर दिस 80,000 10% वुड बी कैलकुलेटेड। यही ना बोला है डिविजिबल प्रॉफिट पे 10%, तो अब तक का डिविजिबल प्रॉफिट 84,000 था, जिसमें से 4,000 का कमीशन दे दिया। अब डिविजिबल कितना बचा 80,000, तो उस 80,000 का 10% यानी 8,000 वो रिजर्व में चला जाएगा टू रिजर्व फंड। रिजर्व फंड के लिए जनरल एंट्री मैंने यही बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फंड और टू जनरल रिजर्व, ठीक है, 8,000। ठीक, अब इसके बाद हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना बच जाएगा, 8,000 में से फिर से अगेन 80,000 में से 8,000 चला गया, तो अब कितना हो गया 72,000। तो दिस 72,000 इज द प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट फॉर दिस फर्म। अब इसको क्या करना होगा, PSR में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 72,000। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसमें A एंड B। कितना था 72,000 एंड देयर PSR इज if you will go through the question there is no agreement over the profit sharing ratio। तो अगर एग्रीमेंट नहीं हो तो होगा तो किस में बांटना होगा, इक्वल रेशियो में। तो यहाँ PSR नहीं दिया है, दैट इज वाई 72,000 वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो, ठीक है। तो यानी 72,000 है। अब इक्वल रेशियो का मतलब देयर आर टू पार्टनर्स, तो 1:1 मीन्स 1/2 1/2, तो 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा 36,000। Now at last total 1,05,000। नाउ क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। तो कमीशन के लिए वर्डिंग पे ध्यान देना है कि चार्ज अगेंस्ट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। इसी तरीके से जो रिजर्व ट्रांसफर करना है वो नेट प्रॉफिट का अमाउंट परसेंटेज कैलकुलेट करना है या डिविजिबल प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज हो सकती है। कभी कभी कमीशन भी नेट प्रॉफिट पे दिया जाता है, कभी डिविजिबल प्रॉफिट पे दिया जाता है, जैसे इसमें डिविजिबल प्रॉफिट पे। तो ये चीजें ध्यान में रख करके आगे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वन मोर थिंग।
कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो. Till now, in many questions, you have seen that profits are to be distributed in their capital proportion or capital ratio. और उस केस में हमारा जो भी पार्टनर्स का कैपिटल होता था, मैंने बताया था कि कैपिटल का सबको सामने लिखेंगे, उसके बाद कट करके उसका एक रेशियो बना लेंगे. ठीक है, सपोज दैट किसी पार्टनर का कैपिटल 60,000 और इसी तरीके से 40,000 है. ठीक है, इनका रेशियो बनाने के लिए मैंने बताया 40 कैंसिल हो रहा है, 40 कैंसिल करेंगे, 2 से कट हो जाएगा 2 नंबर, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी इनका रेशियो क्या हो गया 3:2 हो गया. बट सम टाइम ये तो इतना इजी होता है कि व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड मींस कैपिटल इज रिमेन्स सेम थ्रू आउट द ईयर. स्टार्टिंग में जो कैपिटल वही एंड में कैपिटल चेंज नहीं होती है, यानी न तो कैपिटल में से कोई ड्राइंग होती है और न ही कोई फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है. उस केस में इजीली यू कैन मेक द रेशियो. But if during the year some changes are there in the capital, means any partner is introducing some new capital, or if some partners they are taking out money from their capital, means they are making drawing out of their capital amount. So in that case the amount will be varied. In that case how you will calculate the रेशियो और हाउ यू विल फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल. अगर मान लो क्वेश्चन में बोला है कि कैपिटल के रेशियो में ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उस केस में हम कैसे करेंगे जब इनकी कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर चेंज होती है. तो इसको क्वेश्चन को समझाने के लिए, सीधे इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 33. ठीक है, 33 में बताता हूँ. 33 के बाद फिर सारे क्वेश्चन हमारे उसी टॉपिक से हैं जिस टॉपिक को मुझे नए टॉपिक को डिस्कस करना है. 33 पे ये पोर्शन खत्म होगा, इसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 33 देखो, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना. Okay, in this 33 question, A, B and C started partnership business on 1st January 2019 with a capital of rupees 1 lakh, rupees 80,000 and rupees 60,000 respectively. On 1st April, they decided to have their capital as rupees 80,000 each. Profit for the year 2019 was rupees 48,000. You are required to apportion the profit of the firm in their capital ratio. और कैपिटल क्या है, ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो रही है. तो इस केस में हमको कैपिटल का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या निकालेंगे, इम्प्लाइड कैपिटल. ठीक है, वर्किंग नोट करके सबसे पहले हम लोग इनका निकालते हैं इम्प्लाइड कैपिटल कि टोटल कितनी कैपिटल किसी एक पार्टनर की थ्रू आउट द ईयर फर्म में यूज की गई. ठीक है, कभी किसी पार्टनर की कैपिटल ज्यादा थी, कभी कम हो गई, तो थ्रू आउट द ईयर किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर की टोटल कितनी कैपिटल यूज की गई, यानी इम्प्लाइड कैपिटल निकालेंगे. वर्किंग नोट लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल इम्प्लाइड. ठीक है, कि पार्टनर की कैपिटल कितना इम्प्लाइड थी. अब इसमें बोल रहा है कि 1 जनवरी 2019 को तीनों पार्टनर की कैपिटल दिया 1,80,000 एंड 60,000. इसी तरीके से बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल यानी जस्ट आफ्टर 3 months दे डिसाइडेड टू हैव देयर कैपिटल 80,000 ईच. यानी सारे पार्टनर ने सोचा कि अब हम सारे लोग के पार्टनर इक्वल रहेगी 80,000. तो जिसकी 1 लाख थी वो 20,000 निकाल लेगा, और जिसकी 60,000 पहले से थी उसको 80,000 करने के लिए वो 20,000 रुपीज की फर्दर कैपिटल लेकर के आएगा. यानी कैपिटल चेंज हो रही है. तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर ए का जो कैपिटल था, स्टार्टिंग कैपिटल 1 लाख. ठीक है, जनवरी से 1 लाख था, जिसमें अप्रैल से चेंज हो रहा है 80,000 हो जा रहा है. तो जनवरी, फरवरी, मार्च 1 लाख यूज किया गया, तो 3, तो इसका मतलब ये 3 लाख. इसी तरीके से अप्रैल से जाके 80,000 डिसाइड किया गया कि अब इसकी कैपिटल कितनी रहेगी, 80,000 रहेगी.
अभी 80,000 कब अप्रैल से यूज किया गया, दिसंबर तक, यानी यहाँ कैलेंडर ईयर दिया है तो 9 मंथ होगा, तो 9 मंथ में उसका टोटल कैपिटल कितना यूज हुआ होगा, 7,20,000, यानी हिज टोटल कैपिटल वाज इंगेज्ड इन द बिजनेस 10,20,000। ठीक है, इसी तरीके से अगर पार्टनर कैपिटल विड्रा करता है तो उस तरीके से प्रोपोर्शनेट हमको ब्रेक करके उतने उतने मंथ का टोटल कैपिटल निकालना होगा। इसी तरीके से फॉर बी का इनिशियल कैपिटल कितना था, 80,000, यानी 1 जनवरी को कैपिटल 80,000 था, इसका भी अप्रैल से चेंज हो रहा है तो 3 मंथ तक तो सेम था। अच्छा एक मिनट, फर्स्ट इसका देखेंगे, जो बी का कैपिटल है 80,000 है और 1 अप्रैल से सारे पार्टनर ने डिसाइड किया कि सारे पार्टनर्स की कैपिटल 80,000 ही रहेगी, तो इसकी 80,000 थी और 80,000 रखना भी था, तो थ्रू आउट द ईयर देयर वाज नो चेंज इन द कैपिटल ऑफ बी, न तो इसको कोई नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करना था, न ही कैपिटल की ड्राइंग करनी थी, तो 80,000 वाज यूज्ड थ्रू आउट द ईयर। तो इस टोटल कैपिटल वाज यूज्ड 9,60,000। इसी तरीके से फॉर सी का इनिशियल कैपिटल दैट वाज 60,000, जनवरी में 60,000 था, अप्रैल से चेंज हो रहा था, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ उसकी कैपिटल 60,000 थी। ठीक है, 1,80,000 एंड आफ्टर दैट कैपिटल वाज 80,000, मतलब 20,000 का इसको नया लाना पड़ा होगा, तो ये 9 मंथ थी। इस कैपिटल ये क्या आ गया, टोटल कैपिटल इम्प्लाइड आ गया, मींस टोटल कैपिटल फर्म में थ्रू आउट द ईयर कितना यूज हुआ, ए की कैपिटल 10,20,000 यूज हुई, पूरे साल में बी की कैपिटल 9,60,000 रुपीज यूज किया गया और सी की कैपिटल इन पार्टनरशिप बिजनेस में पूरे 12 मंथ्स में 9 लाख का यूज किया गया। अब इसको लेकर के हम रेशियो निकालेंगे। ठीक है, रेशियो सामने सामने लिखेंगे, 10,20,000 रेशियो 9,60,000। ठीक है, इसी तरीके से ये लिख देंगे ए बी एंड सी 9 लाख। ठीक, इसी तरीके से 40 सब में कॉमन है, 40 कट सकता है, 40 को कट कर दिया। ठीक है, अभी 2 से कट करते हैं, ठीक है, और इसको कट करके छोटा किया जा सकता है, 3 से कट करते हैं, सॉरी 3 से कट करते हैं, सेवनटीन 16 एंड 15। अब ये 17, 16, 15 किसी से कटना नहीं है, तो ये इनका 17:16:15 ये इनका रेशियो है। और कह रहा है कि जो प्रॉफिट 48,000 आया है उसको इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट को बांटेंगे तो लिखेंगे एज प्रॉफिट या एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, टोटल है 48,000, ए का रेशियो कितना है 17, इसको टोटल करेंगे 17, 16 और 15, तो ये 48। ठीक है, इसको 48 हो जाएगा, तो 48 से 48 सिंपल कट जा रहा है, इसका मतलब इसका 17,000। ठीक है, इसी तरीके से बी का प्रॉफिट आ जाएगा, 20 प्रॉफिट 48,000 मल्टीप्लाइड में इसका रेशियो कितना है 16/48, 48 से कट गया, इसका मतलब इसका कितना हो गया 16,000। ठीक है, ये कट जाएगा इसमें भी सी में, तो सीधे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15,000, तो 17,000, 16,000 एंड 15,000 वुड बी देयर प्रॉफिट्स। ठीक है, अब यहां से हमको
आगे जो है वो न्यू टॉपिक को क्वेश्चन करना होगा। और आज के लिए बस यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड कर देता हूँ, बिकॉज यू आर हैविंग मोर क्वेश्चंस फॉर होमवर्क, उसको आप कंप्लीट करिए और ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ठीक है सारे लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम है वो पर्सनल में मैसेज करके पूछ सकता है। बाकी स्टूडेंट्स जो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे नहीं हैं वो कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आती है, लगता है कि कंटेंट समझ में आता है तो वीडियो को लाइक किया करो और वीडियो को कमेंट करें। और जितने नए लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें।